Yeah, good evening, all of you. Good evening. Hello, good afternoon, everyone. Yeah, good afternoon, Dr. Mac. Good afternoon. I hope my presentation is visible. Yes, your presentation is visible and your voice is also audible. So Okay, let's just wait for 2 more minutes for everybody to join in, then we may begin with a brief introduction. sure. Thank you. Can I display my screen for some time if that is okay with you? Yeah. Thanks. Yeah, बोलूं स्टार्ट कर So, hello everyone, good afternoon, and thank you for joining the session. And I really welcome Dr. Jatin, who has taken out his time to enlighten all of us on the new NABH standards and what we should be doing as a quality nurse, especially how should we prepare ourselves while facing the audit, and what are especially the points that we need to take care of when we are facing the audit as a ICN or infection control nurse, as an infection control head. So what do the auditors ask? Where do they what are the points that they really want you to close? So, Dr. Jatin, thank you so much. And just to give Dr. Jatin a short introduction, Dr. Jatin is a MBA, PGD, HCM, DMLS, PGD, QHM, and DMT. And so he has many fellowships, is in name, and he has been a specialist in quality and been working with the quality systems throughout India for more than 15 years. So he has a vast experience which he carries with himself, and more to add to it, he has been auditing several hospitals across India, not just in North India, in South India as well. So he has a vast experience which I feel he will be sharing with us, and I feel all of your nurses will be benefiting from him. सभी nurses डॉक्टर जतिन से बहुत ही benefit लेंगी, because एज अ लीड ऑडिटर, एज अ ऑडिटर इन्होंने बहुत बार बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं जो
स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स जो डॉक्टर जतिन हमारे साथ शेयर कर पाएंगे. सो ही इज ऑल्सो विजिटिंग टीचिंग फैकल्टी एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्वालिटी एडवाइजर. सो thank you again, Dr. Jatin, and over to you. Yeah, Let's. thank you so much, and thank you for giving the opportunity to speak. And a special thank to Global A1 Institute of Paramedical Science, Patodi. Thank you so much. So I hope my presentation is visible. So we will start the our presentation. So the critical role of nurses in infection control and quality. So what is the critical roles of the nurses in the infection control and quality? Is it visible my presentation? Dr. Mac? Hello? Yes, yes, your presentation is Yeah, visible and yeah, you are audible also. yeah. Thank you so much. So, on first, frontline defenders, and second, Just so sorry for interrupting. Just if we can make it combination of Hindi and English so that सबको अच्छे से समझ में आ okay, जाए. okay, okay, I got it. Thank So, you. अभी okay. So हम critical role of nurse अपने infection control and quality में क्या क्या critical roles होते हैं nurses के infection control department and quality. तो हम दोनों चीजें के बारे में देखेंगे कि what is the benefit and what is the मतलब like कि क्या क्या रेगुलेटरी क्या क्या सेफ्टी एक्रीडिटेशन इम्पैक्ट पड़ता है इन बीइंग अ नर्स. सो फर्स्ट हमारा जो है फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, सेकंड safety and accreditation impact, and third one regulatory framework. So that is means कि frontline defenders, you know that कि nurses like hospital में जो spine है वो कौन होता है, nurses होती हैं. Everything every time 24/7 nurses will provide care to patients and all. So about the frontline defenders, then second, safety and accreditation impact, that is very important, because safety and accreditation, if we are getting like NABH and JCI and other accreditation, it should be like a benefit for the patient safety, staff safety and organization safety. So इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि स्टाफ सेफ्टी क्या इम्पैक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी पे क्या इम्पैक्ट होता है, एंड पेशेंट सेफ्टी पे क्या इम्पैक्ट होता है. देन थर्ड वन है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सो अगर हम प्रोसेस को रेगुलर और डे बाय डे ऑडिट्स करेंगे, देन वी आर डूइंग आल्सो like monthly audit, yearly audit. So this depend on the regularly framework. So these are the all critical roles for the nurses in the infection control and quality department. सो वाई इन्फेक्शन कंट्रोल मैटर्स, क्यों इन्फेक्शन कंट्रोल हर जगह आपने देखा होगा कि ये एसआई का रेट बढ़ रहा है, वैप का रेट बढ़ रहा है, क्लेप्सी का रेट बढ़ रहा है. वाई इन्फेक्शन कंट्रोल मैटर्स दिस फॉर द नर्सेज. सो 7 to 10% आर ग्लोबल एचए रेट. इट मीन्स कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट एक्वायर इन्फेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड, अकॉर्डिंग टू WHO 7 to 10% है. देन इंडिया HAI प्रिवलेंस क्या है अपना 7.4. एस्टिमेट रेट जो टर्चरी केयर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उसमें अपना 7.4 से. क्रिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अगर HI का रेट बढ़ेगा, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बढ़ रहा है, पेशेंट आपको यहाँ पर आ रहा है, देन आप देखेंगे कि अभी पहले अपने टाइमिंग था 40 आवर्स के बाद अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो दैट इज अ HAI. नाउ एज पर द CDC गाइडलाइन वी फॉलो अ कैलेंडर डेज, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, राइट. सो क्रिटिकल कॉन्सिक्वेंस के अंदर अगर इन्फेक्शन कंट्रोल रेट बढ़ेगा तो किस किस के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, मतलब स्टाफ के ऊपर इम्पैक्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन के इम्पैक्ट होगा. तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि then why infection control matter in the hospitals. So increase healthcare cost and prolong hospital stay. अगर इन्फेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगा, देन प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे होगा, हायर मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स भी बढ़ सकते हैं. देन रेपुटेशन, जो रेपो होती है हेल्थ केयर की फैसिलिटी, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर रेट्स ऑफ HAI के हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के ज्यादा है. देन रिस्क ऑफ एक्रीडिशन लॉस एंड लीगल इम्प्लीकेशंस. आपने देखा होगा एक्रीडिशन जो अपने NABH करवाते हैं, JCI करवाते हैं या ACI करवाते हैं, QI एक्रीडिशन, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्रीडिशन इन द बॉडी इन इंडिया. सो उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं एक्रीडिशन के, प्लस लीगल इम्प्लीकेशंस. लीगल इम्प्लीकेशन में आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ. वी विल फॉलो दी बायोमेडिकल रूल्स 2016. अगर हम वो फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें लीगल इम्प्लीकेशंस चांसेस हो सकते हैं. So that is the main important for the infection control matters in the healthcare system.
देन अपना है हैंड हाइजीन, द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैंड हाइजीन. सो एज पर दी एनईबीएच स्टैंडर्ड, अभी यू नो डेट कि एनईबीएच अब सिक्स एडिशन पे आ चुका है, 24 में इम्प्लीमेंट हो गया था सिक्स एडिशन. सो कॉम्प्रहेंसिव इन्फेक्शन कंट्रोल रिक्वायर्ड फोकसिंग ऑन सर्वेलेंस एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स, एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स. सो एनएबीएच सिक्स स्टैंडर्ड में क्या है कि जो अपना इन्फेक्शन कंट्रोल के पैरामीटर्स हैं, अभी यू नो डेट देन पहले हमारा था चैप्टर नंबर 5, ठीक है, अभी चेंज हो गया चैप्टर, इसमें अभी आईपीसी हो गया है, पहले अपना इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल चैप्टर चेंज हो चुका है. तो दैट इज देयर आर सो मेनी एडेड स्टैंडर्ड्स एज वेल एज इन द एनएबीएच 6th एडिशन. सो उसके अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल्स फोकसिंग ऑन सर्वेलेंस प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स एनवायरमेंटल सेफ्टी, देन ऑल्सो दे विल फोकस ऑन कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट. अब कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, जब तक अपन लाइक ऑडिट्स करेंगे, देन उसका आरसी कापा करेंगे, देन इवेल्युएट करेंगे मेजर्स, सो दे विल बी फॉलो दी लाइक क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेजर्स. सो एक तो ये अपना इन्फेक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड है जो मैं अभी एनएबीएस की बात कर रहा हूँ. देन सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, तो दूसरा हमारा जो हेल्थ केयर फैमिली वेलफेयर है, उसका नेशनल गाइडलाइंस हमारी क्या बोलती है, सीमलाइंस अलाइनमेंट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल गाइडलाइन फॉर आईपीसी इन्फेक्शन कंट्रोल इन हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर स्टैंडर्डाइज इम्प्लीमेंटेशन. And GCA standard alignment, that is a very different. ठीक है. So as per the GCA also infection prevention and control standard for world class patient safety practice. So any infection control जो standards होते हैं overview, मतलब सेम चीज है आप अगर देखेंगे तो. सिक्स आपका एनईपीएच भी ये बोलता है, आपकी हेल्थ केयर फैमिली वेलफेयर भी यही बोलती है, देन जेसीए स्टैंडर्ड भी यही बोलते हैं. ओवरऑल कहने का बात ये है कि इन्फेक्शन कंट्रोल दैट इज अ मेनली इंपॉर्टेंट for healthcare facilities and healthcare workers to prevent the HAI. Then अब what is a major role of ICN? क्या ICN के roles हैं, responsibility हैं, उस पर अपन थोड़ा focus करेंगे. So the infection control nurses roles and responsibilities, that is one point, protocol development. सेकंड है हमारा कंप्लायंस मॉनिटरिंग, थर्ड है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स, एंड फोर्थ वन है आउटब्रेक मैनेजमेंट. So protocol development, what is a how can we develop the culture in our healthcare settings? ठीक है. So protocol development, first we need to prepare like policy, हम policy बनाएंगे, process बनाएंगे अपने, कि हम किस कैसे अकॉर्डिंग हम ऑडिट्स करेंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या हमारे सर्विस, सपोज मेरे हॉस्पिटल के अंदर ऑन्को डिपार्टमेंट है, किसी हॉस्पिटल में ऑन्को डिपार्टमेंट नहीं है. सो ये प्रोटोकॉल्स एंड डेवलपमेंट जो बनता है वो एज पर दी रिक्वायरमेंट बनता है कि हमारे हेल्थ केयर सेटिंग में किस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह की प्रोसेस हमारे यहाँ पर होता है, तो उसके डिपेंड होके हम उसकी पॉलिसीज बनाते हैं, दैट इज अ प्रोटोकॉल डेवलपमेंट. पहले हम प्रोटोकॉल डेवलपमेंट करेंगे जब भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. विदाउट डेवलपमेंट के प्रोटोकॉल्स बनाए और हम अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल. So being a ICN, there's a mainly roles of responsibility, that is a major point, is the protocol development. अगर हम प्रोटोकॉल डेवलपमेंट करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट एज पर दी प्रोसेस, एज पर दी हॉस्पिटल प्रोटोकॉल. हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल किस तरह के प्रोसेस होते हैं, उसी तरह से हम प्रोटोकॉल्स डेवलपमेंट करेंगे. देन कंप्लायंस मॉनिटरिंग, व्हाट इज आई मीन बाय कंप्लायंस मॉनिटरिंग? कंप्लायंस मॉनिटरिंग, अगर हम एक हैंड हाइजीन का प्रोटोकॉल बनाए कि अपना रेशो 70% होना चाहिए पर मंथ का, फ्रॉम नर्सेज साइड, फ्रॉम डॉक्टर साइड, फ्रॉम पैरामेडिकल साइड, तो उसको जो अगर हमने एक बेंचमार्क करना फिक्स किया है कि 70% अपना होना चाहिए, तो उसी का हमको कंप्लायंस मॉनिटरिंग हमको करना है. एक डब्ल्यूएचओ हैंड हाइजीन चेकलिस्ट होती है. अब आप में से कोई आईसीएन है तो आपको पता होगा कि हम हैंड हाइजीन का ऑडिट करते हैं. तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ दी ऑडिट्स आल्सो, कि कोई सरप्राइज ऑडिट भी होता है हैंड हाइजीन में, कोई आप एक आईसीएन जाता है डिपार्टमेंट के अंदर, वो एक चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ता है, कोई डिजिटलाइज करता है. तो डिपेंड करता है हॉस्पिटल का पॉलिसी क्या है, बट इज अंडर ऑन कंप्लायंस मॉनिटरिंग. अगर हम कंप्लायंस मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो हमें मालूम ही नहीं होगा कि हम बेंचमार्क से ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं. तो फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द बेंचमार्क, कि
सबके हॉस्पिटल के अलग अलग बेंचमार्क होते हैं। ऐसा नहीं है कि 70% ही होना चाहिए हैंड हाइजीन का, नो। आपका सबसे पहले आपको बेंचमार्क फिक्स करना होता है कि आपके, मान लो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, कोटी है, क्लेप्सी है, तो देयर जस्ट सो मेनी पैरामीटर्स, वी नीड जस्ट फर्स्ट टू डिफाइन द बेंचमार्क, देन वी विल फॉलो द कंप्लायंस मॉनिटरिंग अकॉर्डिंग टू बेंचमार्क। अगर हमारा 60 से ऊपर जा रहा है तो हमें, सपोज हमने फिक्स किया 55 हमारा हैंड हाइजीन होना चाहिए ओवरऑल, इंक्लूडिंग विद डॉक्टर्स, नर्सेस एंड पैरामेडिकल। एवरेज हमारा होना चाहिए 60। अगर हमारा 60 से बिलो जा रहा है तो देन वी नीड टू टेक अ एक्शन कि क्यों हो रहा है, अगर हम कंप्लायंस प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो। ठीक है। देन थर्ड है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दैट इज अ बेसिक एंड मेजर पॉइंट इन द रोल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आईसीएन एंड डॉक्टर। जस्ट अ मिनट। Yeah, is it visible? My this slide, infection control and nurses, ICN roles and responsibility. Yes, Yes. yes. Yeah. Yeah. So we are talking about the education and training. So education and training is a very important point because if we are giving the trainings and education and awareness to the staffs, paramedicals, and doctors on hygiene, compliance, and biomedical waste and other infection and aseptic technique, so we can prevent the HAI rates also. Then outbreak management. लास्ट टाइम आपने देखा होगा कोविड हुआ था, कोविड में हाउ कैन वी मैनेज दी लाइक आउटब्रेक मैनेजमेंट, हाउ कि हमने कैसे आइसोलेशन किए थे, तो दैट इज अ ओवरऑल द मैनेजमेंट इन द आउटब्रेक। So that is a like roles of responsibility for the for ICN protocol development, compliance monitoring, education, trainings, and outbreak management. So I just giving the one example, case study, how an ICN prevent a surgical site infection outbreak. So any hospital Y that is located in any city in 2025. So challenge, surgical site infection rate detected through the routine surveillance by the ICN team. सो इंटरवेंशन कैसे करेंगे हम, अगर आपने देखा होगा कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर या मेरे हॉस्पिटल के अंदर हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन ट्रैक भी करते हैं, सो डेट वी नो कि पेशेंट को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो हाउ कैन वी ट्रैकिंग, हाउ कैन वी डेवलपमेंट दी प्रोसेस, हाउ कैन वी प्रोटोकॉल टू ट्रैक दी एसएसआई। सो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट द कॉम्प्रेसिव बंडल केयर प्रोटोकॉल। फर्स्ट वी नीड टू create a bundle checklist for related to SSI, surgical site infection. Then there are so many parameters in the surgical site infection checklist also, like preoperative antibiotic, timing optimization, enhanced environmental cleaning nearby, and the mandatory staff retraining on aseptic techniques. Is there is a yeah, you can say like we will implement the intervention, then outcomes kya aaya फिर, then achieved remarkable 60% of reduction in SSA rate within a 6 months, with sustained improvement document over the following years. So अगर आपको लग रहा है कि आपके हॉस्पिटल में चाहे एसएसआई का रेट बढ़ रहा हो, चाहे आपका वैब का रेट बढ़ रहा हो, या कोटी का रेट हो, या हैंड हाइजीन कंप्लायंस हो आपका हो, तो फर्स्ट वी नीड टू डी ए पीडीसीए, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ठीक है। सो अब उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम प्लान बनाएंगे, क्या हमको चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों हमने इसको किया, फिर उसका हम इंटरवेंशन करेंगे। अगर हमको इंटरवेंशन, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट केस स्टडी का एक एग्जांपल बताया एसएसआई की, तो इंटरवेंशन हम करेंगे, देन हम उसका आउटकम देखेंगे कि कितना हमने अचीवमेंट अचीव किया है, कितना परसेंट हमने स्कोर अचीवमेंट किया है। तो दैट इज ओनली आई वाज गिविंग द एग्जांपल फॉर द एसएसआई। देन अनदर अगर मैं बात करता हूँ लाइक हैंड हाइजीन का भी हम कर सकते हैं, सर्जिक वेब का भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपके यहाँ पर किस तरह के इन्फेक्शन
क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं आपके हॉस्पिटल के अंदर। तो इट डिपेंड ऑन दी आपके हॉस्पिटल के इन की आपकी क्या पॉलिसी बोलती है। देन core components of infection prevention and control program. Yes. um, हाँ ठीक है ना, मैम नंबर लो, मैम को इन्फॉर्म कर लो। Can everyone please they mute आप- themselves? सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, इसमें डिस्टरबेंस आ रहा है। थैंक यू। So core components of infection prevention and control program, that is a hospital infection control committee, that is a very major points. Then second, IPC manual and policies. Third, surveillance data management and training and competency assessment. So first, HIC committee. What is a HIC committee? So HIC committee क्या होता है? HIC committee में अगर हम हमारे जो ओवरऑल मंथली का इन्फेक्शन कंट्रोल की जो हम ऑडिट्स करते हैं, हैंड हाइजीन, बायोमेडिकल, सर्वेलेंस ऑडिट, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल प्रोग्राम, देयर आर सो मेनी ऑडिट्स रिलेटेड टू दी एचआईसी। देन और क्या क्या अपन को चैलेंजेस हुए इस महीने में, और कितना इन्फेक्शन रेट हमारा बढ़ रहा है, कितना हमारा कम हुआ है, तो हम सब कुछ क्या करते हैं, एक कमेटी फॉर्मुलेट होती है एचआईसी की, हर हॉस्पिटल में होती है, हर हर एक स्टैंडर्ड बोलता है कि आपका लाइक एनएबीएच हुआ, जेसीआई हुआ, एसीआई हुआ, क्यूआई स्टैंडर्ड हो गया, एवरी स्टैंडर्ड सेज दैट कि वी हैव टू हैव अ एचआईसी कमेटी एंड वी विल कंडक्ट एवरी मंथ। क्यों क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जब तक हम एक मीटिंग में, हमारे उसमें चेयरपर्सन होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, आईसीएन होता है, ओटी इंचार्ज होता है, हाउसकीपिंग इंचार्ज होता है, ठीक है, फिर क्रिटिकल केयर का कोई नर्सेस का इंचार्ज हो गया। सो दोज आर वर्किंग द एचआईसी विद द एचआईसी टीम आल्सो, दे कैन आल्सो अ कमिटी मेंबर। तो इसमें हम डिस्कशन करते हैं कि हमारा मंथली में कितना इन्फेक्शन हुआ, कितना कम हुआ, क्या क्या हमने आउटकम्स मेजर्स लिए, क्या क्या हमने अचीव किया, क्या क्या हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है फ्यूचर के लिए। तो दैट इज ऑल प्रोसेस डिस्कस इन दी ओनली फॉर एचआईसी कमिटी। सो फर्स्ट हमें जो कोर कंपोनेंट्स हैं इन इसके आईपीसी के, उसमें कौन कौन से कोर कंपोनेंट्स आते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो पहला अपना हो गया HICC, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। देन सेकंड हो गया अपना आईपीसी मैनुअल एंड पॉलिसीज। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मैनुअल पॉलिसी। जब तक हम अपने पॉलिसीज के अंदर हमारे प्रोसेस नहीं डालेंगे, हम प्रोटोकॉल्स नहीं मेंशन करेंगे, एक पॉलिसी क्रिएट नहीं करेंगे, तो हम कैसे इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे? फर्स्ट वी नीड टू formulate and policies, IPC manuals also, इन्फेक्शन प्रिवेंट कंट्रोल अपन को मैनुअल बनाना पड़ता है, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाए। देन थर्ड वन है हमारा, या नहीं देती हो तुम डायरेक्ट मैम का नंबर ले लो, हो गया। मैडम आप प्लीज अपना म्यूट करेंगे। देन थर्ड वन है हमारा सर्वेलेंस एंड डेटा मैनेजमेंट। How can we doing the surveillance and how can maintain the our data management in related to the HIC? So सर्वेलेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑडिट्स भी सारी आपकी सर्वेलेंस में आती है, आप कल्चर्स भी स्वैप कल्चर्स लेते हैं डिपार्टमेंट का, वो भी आपका सर्वेलेंस में आता है। देन अगर पेशेंट को आप HEI कैप्चरिंग करना है, तो आपको आपको सर्वेलेंस करना पड़ेगा, लाइक SSI का सर्वेलेंस करना पड़ता है आपको, कोटी का, क्लैप्सी का, देयर आर सो मेनी सर्वेलेंस। सो we need to also maintain the surveillance data and data management. How can we data management, how can we doing तो उसके लिए अपन क्या करेंगे डेटा मैनेजमेंट में? सबसे पहले हम मंथली बेसिस पे हम ऑडिट करेंगे, देन उसको हम उसका एनालिसिस करते हैं कि कितना हमारा हैंड हाइजीन का ग्राफ, हमारा परसेंटेज कितना आ रहा है, हमारा बायोमेडिकल का परसेंटेज कितना आ रहा है, हमारा यू कैन सेलेक्ट दैट ऑल लाइक एसएसआई, कोटिक, क्लैप्सी, इनका कितना परसेंटेज आ रहा है। तो वी नीड टू मेंटेन आल्सो डेटा, so that we can also present in our HIC कमेटी के अंदर कि इतना परसेंटेज इतना बढ़ रहा है, इतना इतना कम हो रहा है। तो ये सब चीजें अपन HIC कमेटी के अंदर डिस्कशन करते हैं, सो दैट इसलिए हमको सर्वेलेंस डेटा मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सो ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, ट्रेनिंग दैट इज अ डिफरेंट पार्ट एंड कॉम्पिटेंसी असेसमेंट दैट इज अ आल्सो डिफरेंट पार्ट।
Training, we need to give a training related to HIC, hand hygiene, biomedical, PP, donning, doffing. Both There's are so many topics related to the HIC. So we need to give particular department, particular staff. Even we can give a bedside training as well, as like cleaning, aseptic techniques. There are so many topics. Okay. Then second one, competency assessment. What is a competency assessment? So competency assessment क्या होता है? Suppose आपने, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं कि आपने एक जूनियर स्टाफ को, एक जो पेशेंट को वेंटिलेटर पे है, पेशेंट वेंटी है उसके लगा हुआ, आपने जूनियर स्टाफ को दे दिया। अभी उसका इंडक्शन नहीं हुआ, अभी वो फ्रेशर है, एंड ही एंड शी दे डोंट नो अबाउट द HIC प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले अपन उसका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट भी करेंगे कि हमें किस स्टाफ की जो कॉम्पिटेंसी है उसके अकॉर्डिंग अपन को पेशेंट को के पास हमको केयर के लिए असाइन करना होता है। अगर अपन अपन फ्रेशर को दे देंगे तो हाउ कैन वी मेंटेन दी HIC? दिस इज नॉट, आई कैन से कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। फर्स्ट वी नीड टू असेसमेंट, उसका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करते हैं कि स्टाफ का इतना इतना इसको इतना एक्सपीरियंस है, इसको इतना क्वालिफाइड है, एंड ही एंड शी दे नो अबाउट द HIC प्रोटोकॉल्स, सो दैट वी कैन गिव अ असाइन। ठीक है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट एज वेल एज। सो देयर इज कोर कंपोनेंट्स फॉर द HIC। फर्स्ट HIC कमिटी, then IPC manual and policy, surveillance data management, then fourth one training and competency assessment. Sir, I'm having one query. Yeah, please. Sir, you stated that there are HIC committees. So, Yeah. sir, department-wise means the HIC committees are present as a department-wise, or in a hospital there is only one No, committee. no. Hospital will formulate the HIC committee, not a department-wise. Department members will added in the HIC committee, like OT in charge, housekeeping in charge, ICN, ICO, ICU in charge, emergency in charge. They can be a member in the HIC committee. Means in one hospital there will be only such one committee, Yeah, such committee. Yeah, there are so many committees as per the NAB standard, but if I'm talking about the HIC committee should be maintained every month. Okay, sir. Thank you, sir. Any other? Okay. No, sir. Thank you. Okay. So NABH audit focus infection control and documentation. So NABH क्या फोकस कर, मतलब लाइक इन्फेक्शन कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन में अपन देखेंगे कि देयर इज सो मेनी डॉक्यूमेंटेशन इन दी HIC as per the NABH standard, as per the GCI standard, and as per the other accreditation standards. ठीक है. First, essential documentation, that is a very important, like comprehensive IPC manual with all policy and processes. It should be there in all processes. How can we use aseptic techniques, and which processor, type of the processor, type of the techniques we are using in the particular processors. ठीक है. ये सारा आपका पॉलिसीज के अंदर होना चाहिए. देन सेकंड, मंथली एंड क्वार्टरली ऑडिट शुड बी रिपोर्ट्स विद एक्शन प्लान्स. ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक बार ऑडिट कर लिया देन फिर छोड़ दिया. नो, it should be regular basis, it should be monthly basis, it should be a quarterly basis for the particular audits with the action plan. Then staff training record should be there with attendance and competency assessment, as well as the pre and post test and feedback form. Then third one, our incident reports and corrective action documentation. That is very, very important. If any raise incident in your hospital, so it should be done in within a 24 hours, and corrective and CAPA will be done in within a 48 hours as per the NABH guideline. Okay. So that is the essential documents in the NABH audits. Second, कंप्लायंस चेकलिस्ट रिक्वायर्ड. कौन कौन से मैंडेट चेकलिस्ट होती है जो हमें चाहिए होती है ड्यूरिंग ऑफ ऑडिट्स? हैंड हाइजीन ऑब्जर्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड हैंड हाइजीन ऑडिट चेकलिस्ट from WHO website. And then PP uses monitoring across all departments. Third one is sterilization, disinfection process verification is very important also. Then environmental cleaning and biomedical waste segregation is very also important.
Record maintenance and standards. All infection control record must be updated regularly, easily retrievable and maintained for a minimum 3 years to meet any NABH and JCI audit. So कंप्लाइंट चेकलिस्ट मैंने आपको बताया कि हैंड हाइजीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, चेकलिस्ट होनी चाहिए, पीपी मॉनिटरिंग चेकलिस्ट होती है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस चेकलिस्ट होती है, उसका वेरिफिकेशन भी होता है, एनवायरमेंटल क्लीनिंग में बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन आप कितना जनरेट हो रहा है एज पर दी बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइन 1 to 2 kg पर बेड का जनरेट होता है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, सो ये सारा आपके पास चेकलिस्ट होना चाहिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। द रिकॉर्ड मेंटेन स्टैंडर्ड्स कि एटलीस्ट ऐसा नहीं कि एनएबीएच हो गया, जेसीआई हो गया एंड अदर एक्रीडिटेशंस हो गया तो चलो डेटा खत्म कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। नो, इट शुड बी देयर विद एटलीस्ट 3 years, मिनिमम 3 years बोलता है कि 3 years आपका डेटा होना चाहिए आपके पास। मान लो क्यों होना चाहिए, इसका भी एक रीजन है। सपोज if any SSI raise last 6 months or 1 year, so how can we check? So it should be there at least 3 years data in your hospital, all audits, all compliance related to the infection control and quality. So hand hygiene practice, compliance and auditing. We are talking about the hand hygiene practice, compliance and auditing. ठीक है, so WHO 5 movements, I hope and I believe कि you know about the 5 movements of the hand hygienes: before touching a patient, before cleaning aseptic procedures, after body fluid exposure risk, after touching a patient, after touching patient surroundings. So there is a movements of the hand hygiene as per the WHO. Then monitoring and compliance. How can we doing monitoring? How can we capturing the data? So techniques: proper hand washing with soap and water for 40 to 60 seconds, और सर अल्कोहल बेस मतलब हैंड रब जो आप स्ट्रेलियम या क्लोरोहेक्साडिन से करते हैं, दैट इज अ 20 then 30 seconds, that is a protocol as per the WHO. Sorry. So monitoring methods, direct observations we can do using standardized the form जो मैंने अभी आपको बताया, you can also download from WHO website. Electronic monitoring system with the sensor technology you can do also. Consumption tracking and for hand hygiene products you can do also. There is a method to monitoring the hand hygiene compliance. Then common barriers: time constraints, skin irritations, forgetfulness, inadequate supply, solution accessible, dispensers, education, positive reinforcement. So that is a common barrier होता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि बोलते हैं स्टाफ की हैंड रब नहीं है, कई बार बोलते हैं कि मुझे स्किन से इरिटेशंस होती हैं, कहीं से कोई डिस्पेंसर नहीं है। तो that is a all common barriers. We need to avoid these barriers so that we can achieve the our hand hygiene compliance. Then second, P, personal protective equipment. That COVID के टाइम में that is very important, कितना important था पीपी के types of PPD: gloves, mask, surgical N95, gown, face shield, eye protections, and selected based on exposure risk assessment. During coughing, strict sequence for putting on and removing PPE to prevent self contamination. Doffing is the highest risk movement होता है doffing का. Then disposable protocols: immediate disposable in designated yellow biomedical waste means following BMW management rules 2016. PP shortage during COVID-19 and nurse lead solution. You know that कोविड के टाइम में कितना पीपी किट का कितना इम्पोर्टेंस रही, उसके अंदर कितना इन्फेक्शन रिड्यूस हुआ ड्यू टू दी ओनली फॉर पीपी किट। चैलेंजेस फेस हमने क्या क्या किए, नर्स लीड इनिशिएटिव क्या क्या हुआ, क्या हमने सीखा कोविड से, तो इसके बारे में कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक इंडियन हॉस्पिटल एक्सपीरियंस सीवियर पीपी शॉर्टेज हुआ था, आपको याद हो तो, putting front nurses at increased risk while caring for infection patients. Nurse lead initiatives, development for rational PPE use of guideline based on exposure risk. ठीक है, extended use protocols for N95 हमने जब यूज किए थे with proper storage between patients.
innovation reuse methods following WHO emergency guideline with the decontamination protocols, staff education, maximize protection with available resources. So इससे हमने सीखा भी क्या था? Importance of maintaining adequate PPE stock pills, clear contingency plan, and empowering nurses lead crisis response initiatives. Contingency plan क्या होता है कि इन इमरजेंसी में अगर कुछ शॉर्टेज होता है, कुछ होता है, तो उसका एक प्लान होता है, प्लान बी हम जिसको बोलते हैं, दैट इज अ कॉन्टीजेंसी प्लान ऑल्सो, यू कैन से लाइक दिस, कि उस कॉन्टीजेंसी प्लान में हम क्या क्या हम करेंगे, हमने क्या क्या सीखा। आपने देखा ना, पहले ऑक्सीजन का कितना लाइनिंग शॉर्टेज थी, फिर अभी क्या नए नए हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, सब अपने बेड्स को इंक्रीज कर रहे हैं, हर जगह पाइपलाइन डाल रहे हैं, एमजीपीएस, मेडिकल गैस पाइपलाइन। क्यों? वो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्टीजेंसी प्लान, इन केस कोई दोबारा से पेंडेमिक आया तो हाउ कैन वी मैनेज, उसके लिए वी हैव टू हैव कॉन्टीजेंसी प्लान। देन स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, ठीक है। सो अपने जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं सारे पेशेंट में अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ क्या क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं? इज हैंड हाइजीन, दूसरा अप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ पीपी बेस्ड, तीसरा रेस्पिरेटरी हाइजीन and cuff activity, fourth is safe injection practice and sharp disposal, that is a very important standard precaution. Last one, environmental cleaning and disinfection, transmission based precaution in addition to standard, as well as contact precaution like MRSA virus, VREC, and other also जी droplet precautions. प्लीज आप एक मिनट प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आई थिंक ग्रेस आपका बार बार अनम्यूट हो जा रहा है, तो बाकी लोग सुन नहीं पा रहे हैं ढंग से। थैंक यू। Yeah. So airborne precautions. These are the transmission based precautions. Contact precautions कैसे हम कर पाएंगे, ड्रॉपलेट precautions में हम क्या होता है, then airborne precautions में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो these are the standard precaution and transmission based precautions. Standard precautions में मैंने आपको all patients में बता दिया। So environmental cleaning and disinfection role, that is a very major role in the environmental cleaning and disinfection. जो being a ICN होता है, किस तरह से उसको ऑडिट करनी है, किस तरह से हाउ कैन शी एंड ही चेक की जो environmental cleaning है प्रॉपर हुई है नहीं हुई है, किस तरह का डिसइंफेक्शन सोल्यूशन यूज किया है, कितना रेशो में किया है, क्या प्रोसेस रहा है। तो ये सारा रोल एक ICN का भी रहता है इसके अंदर कि ही एंड शी कैन चेक ऑल्सो, क्रॉस चेक। क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड, एक आप प्रोसेस बनाओ पॉलिसी बनाते हो, देन आप उसका एक फ्रीक्वेंटली ऑडिट करते हो। देन अप्रूव मेथड्स एंड एजेंट्स, ऐसा नहीं कोई भी आया कुछ भी एजेंट यूज किया और अपन ने वो कर दिया, नो। पहले अप्रूव्ड मेथड्स मतलब वो एज पर दी गाइडलाइन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो एजेंट्स होने चाहिए। लाइक नाउ वी आर यूजिंग अ क्लोरोहेक्साडिन, तो एज पर दी CDC गाइडलाइन ने उसको अप्रूव किया हुआ है कि दैट इज आल्सो अ डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन, so that agent we are using in our hospitals. Monitoring through audits, हाँ फिर हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि जो उसका मान लो रेशो है, वो रेशो प्रॉपर डाइल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है, किस तरह से उसने क्लीनिंग करी है, कब कब करी है, किस तरह से करी है, क्या प्रोसेस रहा है, तो वो सब हम एक मॉनिटरिंग करते हैं। जब तक ये मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और ऑडिट्स नहीं करेंगे तो हमारा HAI रेट हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमें HAI का रेट जब भी मालूम पड़ेगा जब हम प्रॉपर मॉनिटरिंग और ऑडिट्स किया करेंगे। ओके, देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी BMW, ठीक है। सो एज पर दी पोल्यूशन बोर्ड गाइडलाइन 2016, सेग्रीगेशन एंड सोर्स, रेड के रेड, येलो, blue, white, and there's a one point missing is a white sharp container also and black. So black is not a biomedical waste management, it's a general waste, it's non-hazardous, it's not a biohazardous। first of all, मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं बीइंग ऐसे सर जब मैं ऑडिट्स के लिए जाता हूँ तो हर येलो, रेड, क्या बोलते हैं, व्हाइट शार्प और ये ब्लू रहते हैं, साथ में वो लोग ब्लैक भी रख देते हैं और उसमें स्टिकर और लगा देते हैं बायोजार्डियस का। इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस।
ब्लैक कभी भी बायोजार्डिस नहीं होता, दैट इज अ नॉन हजार्डियस, इट्स अ डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल के लिए होता है, लाइक हम जनरल वेस्ट डालते हैं या रैपर्स डालते हैं, वॉट एवर, दिस आर ऑल इन ओनली फॉर ब्लैक, we discard in the black only. So red के अंदर हम contaminate waste like tubing, catheters, rubber item they were discard in red bag only. Yellow infectious waste like body fluids, cultures, etc. So इसके अंदर हम yellow के अंदर डालते हैं. Then blue sharp लाइक ग्लास की बोटल्स, कांच जो होता है जितना भी, वो हम ब्लूज के अंदर डालते हैं. व्हाइट शार्प कंटेनर के अंदर क्या होता है, जो निडल्स होती हैं वो हम वाइट शार्प कंटेनर प्रूफ आजकल एज पर दी सीडीसी गाइडलाइन, जैसे जो वाइट शार्प कंटेनर आता है ऐसे ब्लू शार्प कंटेनर भी आने लग गया, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर हम कार्डबोर्ड में ब्लू डिस्कार्ड करते हैं तो वो भी रप्चर होने का चांसेस रहते हैं, प्रिक हो सकता है. तो एज पर दी गाइडलाइंस अब इसको भी रिमूव कर दिया गया है. अब ब्लू भी एक कंटेनर की तरह आता है, बॉक्स जैसे व्हाइट आता है ऐसे ब्लू भी आजकल आने लग गया. So that is a biomedical waste management guidelines. So collection and transportation, this is also very important to prevent the hospital acquired infection, because waste collected in a leak proof labeled containers at least twice a daily from a patient care area using designated trolleys and route to minimize exposure. ठीक है. So nurses responsibility क्या हो सकती है उसमें, ensure करेगी proper segregation हुआ है नहीं हुआ है, training of the new staff, monitoring compliance and maintaining the segregation records as per the biomedical waste management rules 2016. केस स्टडी बीएमडब्ल्यू का हम देखेंगे. तो एक हॉस्पिटल है 300 बेडेड हॉस्पिटल. प्री इंटरवेंशन चैलेंजेस उसमें क्या थे, improper segregation leading to 45 mixed waste, inadequate staff training, disposable violations and risk for regularly penalties. Then measurable, then second nurse lead intervention, nurse ने क्या intervention किया उसके बाद, comprehensive training program for all staff, introduction for color coded waste segregation, champions on each floors, daily monitoring, audit and visual reminder posters. So नर्स ने क्या इंटरवेंशन किया, पहले तो सबसे पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, स्टाफ्स को ट्रेनिंग्स दी, इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज अ यूज फॉर द बायोमेडिकल, कलर कोडेड्स के बारे में बताया. देन हर एक फ्लोर पे उनको चैंपियंस बनाया. जरूरी नहीं है कि हाउसकीपिंग का काम है, बीइंग अ नर्स, बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर्स, ये कोई भी आप उसको डेजिनेट कर सकते हो. एक किसी को भी चैंपियंस बनाकर डिपार्टमेंट चैंपियंस आप बना सकते हो, फ्लोर चैंपियंस बना सकते हो, सो दैट दे कैन आल्सो डूइंग दी ऑडिट्स. आईसीएन तो एक डे फिक्स रहता है ना, नाइट में तो आईसीएन रहता नहीं है. अगर नाइट में भी अगर सेग्रीगेशन हो, प्रॉपर हो, तो उसके लिए अपन को चैंपियंस क्रिएट करने पड़ते हैं. आप फ्लोर्स पे कर सकते हो या अपने ही डिपार्टमेंट में कर सकते हो. तो देन डेली मॉनिटरिंग ऑडिट करा, देन विजुअल रिमाइंडर, पोस्टर्स भी लिखे, पोस्टर्स भी उन्होंने वहां पर लगाए हॉस्पिटल्स में कि इस तरह से बायोमेडिकल सेग्रीगेशन किया जाता है. तो वो नर्स ने क्या किया, लीड ली, इंटरवेंशन किया. देन रिजल्ट क्या है, आउटकम्स क्या है उसके बाद, 90% कंप्लायंस अचीव विद इन 3 मंथ्स. आप देखो जहां 45 था वो 90 हो गया, जस्ट बिकॉज फॉर द ट्रेनिंग मॉनिटरिंग ऑडिट्स एंड जो उन्होंने चैंपियंस बनाए थे, सेग्रीगेशन के बारे में बताया था, उससे कितना अचीव किया उन लोगों ने, 90% कंप्लायंस विद इन 3 मंथ्स, जीरो रेगुलरली वायलेंस इन सब्सिक्वेंट NABH ऑडिट, cost saving through the proper segregation and waste reduction. So key takeaway क्या है यहाँ की, sustained nursing leadership and continuous monitoring are essential for maintaining the biomedical waste management excellence. तो हम अपने डिपार्टमेंट में लीड ले सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं कि कैसे हम उसको बायोमेडिकल को सेग्रीगेशन को प्रॉपर कर पाए. सर्वेलेंस फॉर हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शंस. वाई सर्वेलेंस मैटर, क्यों सर्वेलेंस हमारे लिए मैटर करता है, क्यों HAI बोलते हैं हम हमेशा, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्यों मैटर करता है. सिस्टमैटिक ऑनगोइंग कलेक्शन एनालिसिस ऑफ HAI,
एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग कलेक्शन डेटा है जो हम उसको फिर डेटा आएगा तो फिर अपन उसको एनालिसिस कर सकते हैं हॉस्पिटल एसोसिएट इन्फेक्शन को। देन डेटा एनेबल अर्ली आउटब्रेक डिटेक्शन कर सकते हैं, मेजर्स इंटरवेंशन इफेक्टिवनेस हो सकती है, देन ड्राइव क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, देन वी कैन टेक आल्सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एचएआई, रिलेटेड टू क्वालिटी, पेशेंट सेफ्टी एज वेल एज कॉमन एचएआई टू मॉनिटर्स कोटी, जो मैंने अभी आपको बताया दिया था, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन एचएआई, देन क्लैप्सी सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट आपका क्लैप्सी से होता है। देन एसएसआई सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सिग्निफिकेंट कॉस्ट बर्डन होता है, फॉलो अप होता है, पेशेंट आता रहता है, पेशेंट का कल्चर रिपोर्ट जाता रहता है, बहुत सारे एक्सपेंसिव पेशेंट के बढ़ जाते हैं, कॉस्ट बर्डन आ जाता है। देन वेब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, आईसीयू स्पेसिफाइड रिस्क फैक्टर है ये। तो डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं हम इसमें, आपने देखा होगा बंडल्स हर एक पेशेंट में लगा रहता है, अगर पेशेंट को वेब को वेंटिलेटर लग रहा है या पेशेंट को सेंट्रल लाइन डल रही है या पेशेंट को कैथेटर लग रहा है तो हम बंडल केयर से लगाते हैं। जो हमारी शिफ्ट नर्सेज होती है वो उसको बंडल को प्रिवेंट वो करती है, एंश्योर कि ये बंडल केयर हो रही है नहीं हो रही है। देन आईसीएन क्या करता है, उस पर आईसीएन उसको डेली बेसिस पे राउंड लेता है, ऑडिट करता है, बंडल ऑडिट जिसको अपन बोलते हैं कि वेदर दे आर डूइंग और नॉट। सो डेली राउंड्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, क्लिनिकल असेसमेंट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशंस एज पर दी सीडीसी गाइडलाइन। Then bundle care approach, evidence based prevention and strategic, क्या क्या बंडल केयर अप्रोचेस हैं हम पढ़ेंगे अभी इस बारे में। एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल लाइन बंडल्स, सो हैंड हाइजीन कंप्लायंस उस पैरामीटर के अंदर आता है, मैक्सिमल बैरियर प्रिकॉशंस, क्लोरोहेक्साडिन स्किन एंटीसेप्टिक जो मैंने आपको बताया, ऑप्टिमल कैथेटर साइट सिलेक्शन एंड डेली रिव्यू ऑफ लाइन नेसेसरी, these are the bundle care for central line. Then if I am talking about this catheter care bundle, aseptic insertion techniques, then secure catheter properly, maintain closed drainage system, रिमूव एज सुन एज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि पेशेंट को पहले क्या होता था कि पहले एक वो चलता था कि 7 डेज में रिमूव करना है, 8 डेज में रिमूव करना है, बट इफ देयर इज नो सिम्टम एज पर दी सीडीसी लाइन क्या बोलता है कि हमको चेंज नहीं करना होता, बट हमको कोशिश ही करनी है जब हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में हो, पेशेंट केयर पेशेंट आउटकम्स अच्छे हैं तो हमें जितनी भी लाइंस ट्यूबिंग्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपन को क्या करना पड़ता है, रिमूव, सो दैट एचएआई के रेट्स कम होते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटल इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। वेंटिलेटर बंडल्स में क्या होता है, एलिवेट हेड करना पड़ता है 30 to 45 डिग्री, देन डेली सेडेशन देखना पड़ेगा अपन को। दो तरह के मतलब ये सेडेशन जो हम कर रहे देते हैं पेशेंट में वो अपन को चेक करना है। ओरल केयर अपन को देखनी विद दी क्लोरोहेक्साडिन एज पर दी सीडीसी गाइडलाइन, हमें ओरल जो केयर करनी है वो क्लोरोहेक्साडिन से करना होता है। देन पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस हमको करना है, देन डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस। सो बंडल सक्सेस कब होगा ये, अगर हम इसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करते हैं हमारे डेली प्रोसेस में। अगर किसी को वेंटिलेटर लग रहा है या कैथेटर लग रहा है या सेंट्रल लाइन लग रही है तो वी नीड टू चेक these all parameter according to bundle. So what is the auditing tools and techniques, ठीक है। इन्फेक्शन का ऑडिट हम कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, कैसी करनी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऑडिटिंग इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, टूल एंड टेक्निक्स, प्लानिंग फेज। फर्स्ट वी नीड टू डू प्लानिंग, कि हमको इस तरह की प्लानिंग करनी है। हम फेज 1 में 40% सैंपल लेंगे, 2 में हम 60% सैंपल लेंगे, ये आपकी प्लानिंग होती है। देन आपने एक बार प्लानिंग कर ली, सेकंड में आप डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन में कि हमको हमको सपोज आईसीयू का डाटा कलेक्शन करना है सिर्फ। अभी हमको अगर मैं हैंड हाइजीन की बात करता हूँ सपोज, तो प्लानिंग अपन ने करा, देन डाटा पहले हम नर्सिंग का देखेंगे, पैरामेडिकल का देखेंगे, डॉक्टर्स का देखेंगे, तो वो हमको फिक्स करना है कि डाटा कलेक्शन में क्या क्या होगा, कौन कौन और कौन सी मेथोडोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसमें अंदर, ठीक है। मतलब हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, तो किस तरह की मेथोडोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। देन एनालिसिस करेंगे, जो हमने डाटा कलेक्शन किया
उसका उसका एक एनालिसिस हम करेंगे कि सपोज तुम्हारा बायोमेडिकल का कंप्लायंस 60% 40% हो रहा है, तुमने ओवरऑल डाटा कलेक्शन से तुमने ये पाया गया कि तुमको 40% ही कंप्लायंस आ रही है, तुम्हारी 60% नॉन कंप्लायंस है, ठीक है। फिर उसका एक फीडबैक होगा, क्यों ऐसा हुआ, 40% क्यों रहा। जब वो फीडबैक के अकॉर्डिंग ही फिर अपन उसमें एक्शन प्लान करते हैं कि कोई सपोज स्टाफ ने बोला कि सर बायोमेडिकल सेग्रीगेशन की पॉलिथीन नहीं है हमारे यहाँ पर, शॉर्टेज है, और जो मेन जो गाड़ी लेने के लिए आता है वो 40 टास्क में आता है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो वो फीडबैक हमें मिला, उसका फिर हमने एक्शन लिया, उस पर अपन ने रीवर्किंग करी, तो उसको कैसे अपन उसको करेक्टिव करेंगे और प्रिवेंटिव करेंगे, दैट इज अ कापा। देन जो हमारा 40% आया फिर हमने उसमें इंप्लीमेंट किया, देन हम उसको दोबारा से क्या करेंगे, री ऑडिट, उसमें चेक करेंगे कि जो हम उस टाइम जो फर्स्ट टाइम हमने किया दैट इज वी आर डूइंग 40%, नाउ अगेन वी स्टार्टेड दी री ऑडिट। तो हमने क्या देखा, वी नीड टू चेक एवरी पैरामीटर्स जो हमारे किस नॉन कंप्लायंस जो हमारी एनसी थी, तो री ऑडिट करेंगे सो दैट वी कैन अचीव दी अवर बेंचमार्क कि हमको 60% हमको सेग्रीगेशन चाहिए प्रॉपरली। तो दैट इज अ ऑडिट प्लान, टूल्स ऑफ टेक्निक्स कि हम इस किस तरह से ऑडिट करते हैं और क्या पर्पस होता है ऑडिट करने का। ऐसा नहीं है एनएबीएच बोलता है तो इसलिए हमें ऑडिट करनी है, उसका एक पर्पस होना चाहिए कि हम किस पर्पस से हम इसको ऑडिट कर रहे हैं और कौन सी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं ऑडिट के समय। देन एनएबीएच ऑडिट प्रिपरेशन, व्हाट नर्स मस्ट नो, क्या नर्स जो हमारी नर्सेज हैं, हमारे जो आईसीएन हैं, हमारे क्वालिटी नर्स हैं, उनको क्या सबसे इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए ऑडिट प्रिपरेशन, चाहे आप एनएबीएस की ऑडिट करो, चाहे आप जेसीआई की ऑडिट करवाओ, चाहे आप अदर एक्रेडिटेशन की ऑडिट करवाओ। कॉमन ऑडिट फोकस क्या है हमारा रहता है रिलेटेड टू दी एचआईसी, हैंड हाइजीन कंप्लायंस, स्टरलाइजेशन प्रोसेस, वेस्ट मैनेजमेंट, देन ट्रेनिंग रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंटेशन रेडीनेस चेकलिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ऑडिट प्रोसेस, टूल एंड टेक्निक प्रोसेस। सो सेम थिंग, आईपीसी मैनुअल, करंट एंड एक्सेसिबल, ऑडिट रिपोर्ट्स complete for past 12 months, training logs with staff signatures for verification purpose, then incident report with root cause analysis, surveillance data charts and graphs. There are so many graphs, बार ग्राफ हो गया, पर चार्ट हो गया, तो डिपेंड ऑन दी हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसी रिव्यू डेट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। देन रेस्पॉन्डिंग टू ऑडिटर्स, डू एंड डोंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बी कॉन्फिडेंस, हॉनेस्ट, रेफर टू पॉलिसीज एंड शो डॉक्यूमेंटेशन। डोंट, ये सब ये नहीं करना है, गैस आंसर्स नहीं करने हैं, मेक एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, ब्लेम नहीं डालना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा प्रोवाइड, ये सब चीजें नहीं करनी है। हमें जो हमें हमें क्या है, फैक्ट फाइंडिंग करनी होती है, हमें फॉल्ट फाइंडिंग कभी नहीं करनी। जो फैक्ट है विद द एविडेंस वही हमको फाइंडिंग करनी होती है। किसी को टारगेट थोड़ी बनाना है अस्पताल में, हमें तो क्या, हमारा अचीवमेंट क्या है, बीइंग अ नर्स, बीइंग अ आईसीएन, बीइंग अ nursing quality, we need to improve the our quality parameter standard so that we can give a good quality care to the patient. Audit day, be prepared and be confident, that is a mantra for the auditors. Compliance documentation forms, formats and checklists, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि किस तरह के फॉर्म्स होते हैं, किस तरह की चेकलिस्ट होती है, किस तरह की लॉग बुक्स होती है। सो हैंड हाइजीन फॉर्म्स, आई ऑलरेडी given you the highlight some points की about the hand hygiene audit sheet you can download from WHO website, hand hygiene audit. So observer name, date, time, department, 5 movements to observe, compliance, yes or no, techniques, assessment, opportunity, and compliance rate calculation. Yeah, so there is all parameters included in the hand hygiene audit forms. PP compliance logbook, date, location, procedure, type of PP required, PP used correctly, gaps, identify immediate correction taken करना है, staff members name, auditor and signature also.
एसेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डॉक्यूमेंटेशन, सो दैट किसने किया कब किया ये मालूम होना चाहिए, सिग्नेचर डेट एंड टाइम. Then third, environmental cleaning checklist like room numbers, cleaning frequency, surface clean, disinfect use, contact time, observe, then cleaner signature, supervisor and verification also. So record and retention जो कि मैंने आपको बताया था 3 years का minimum होना चाहिए, so that we can also analysis previous report, current report, ठीक है, and we can do the RCA kappa. If we have previous report, तो we can check according to अपन previous audit कि last time हमारा 40-60% आया था, अभी हमारा 70% है, हमने इतना अचीव किया, हमने इतना इसमें आउटकम्स पाए, तो we can do analysis अगर अपने पास रिकॉर्ड्स रहेंगे तो. So training documentation must be included, attendance sheet, training content outline, competency assessment, result, trainers, credentials, and post-training evaluation is very important, and annual refresher dates also. Like if we are doing pre and post, तो हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि इस स्टाफ को इतना ये ट्रेंड हुआ, प्री में इतना था, देन हमने ट्रेनिंग करी, पोस्ट में इसके कंप्लायंस इतने बढ़ गए. So we can do the analysis also with the help of the pre and post along with the feedback form. GCI infection prevention and control standard key points for nurses. Patient safety goal, that is very important in JCI. Surveillance and reporting and staff competency. These are three mantra for the patient safety goal, surveillance, reporting, and staff competency as per the JCI infection prevention and control standard. Antibiotic stewardship, nurse roles and combining resistance, understanding AMR basics, nurse critical contributions, promoting rational uses, protocol adherence and monitoring reporting. You know right now कि ये जब हम सर्जरी होते हैं तो प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक देते हैं, ऑल्सो वी आर डूइंग द प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक ऑडिट. 30 minutes पहले अपन को एंटीबायोटिक देना पड़ता है बिफोर सर्जरी, so that we can prevent the surgical site infection as well. We can do the prophylaxis antibiotic audit, so that we can also conduct antibiotic program, we can do infection control safety program as well as in our hospital. Needleistic injury prevention and post-exposure prophylaxis, that is the same. Prevention safe practice, immediate post-exposure and post-exposure prophylaxis. So we were talking about the prevention safe practice. Mein, never recap needles using a two hands. Use safety in engineered devices, needleless systems. Dispose immediately. Puncture-proof sharp containers. Do not overfill sharps container beyond fill the line. इमीडिएट अगर एक्सपोजर हो जाता है तो हमको क्या क्या करना है? वॉश वोन विथ सोप एंड वाटर इमीडिएटली. रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर, आईसीएन एंड इमरजेंसी इंचार्ज, जो भी आपके आरएमओज रहते हैं, विद इन 2 hours. डॉक्यूमेंट इंसिडेंट विद डिटेल इंजरी रिपोर्ट फॉर्म. इट शुड बी डन बाय द आईसीएन. Test source patient HIV, HCV and HBsAg. ठीक है, so we can do also viral markers. Then post exposure prophylaxis, risk assessment by occupational health physicians. HIV PP start within 2 hours. If indicate continue 28 days. HPV immunoglobulin if not vaccinated. Baseline and follow-up testing at least 6 week होना चाहिए, 3 months and 6 months. That is a protocol for post-exposure prophylaxis. Outbreak management, we already discussed about the outbreak management and basic principle and basic roles of responsibility for nurses. Early detection, then उसके बाद अपन क्या करेंगे, then isolation, then communication, educations, evaluation, learnings. That is all outbreak management basic principles for the nurse role, yeah, along with the ICN role. Education trainings, I already discussed the mantra of the trainings, the culture of the safety, regular and service training,
stimulations of the role play, patient and family engagement. अभी as per the NABH अभी क्या एक नया स्टैंडर्ड भी ऐड हो गया, we need to give a family education. पहले था कि family education देना है, but now in NAB 6 edition क्या बोलते हैं, फैमिली एंगेजमेंट करना है आपको। एक ग्रुप में एक मान लो सपोज ओपीडी वेटिंग एरिया है, तो वहां पर आपको अवेयरनेस देनी है रिगार्डिंग फॉर हॉस्पिटल, रिगार्डिंग फॉर हैंड हाइजीन एंड अदर कंप्लायंस, कि अगर आप पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, हम इसको कैसे केयर करेंगे, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो रहा है किसी को, तो सारी अवेयरनेस अब स्टार्ट कर दी गई है। दैट इज अ फैमिली एंगेजमेंट एंड पेशेंट एंड फैमिली एंगेजमेंट। ये आपका 6 एडिशन में ऐड हो चुका है। पहले फैमिली एजुकेशन था, जब पेशेंट डिस्चार्ज होता था हम पेशेंट को देते थे, बट या उसके अटेंडेंट को देते थे, बट अभी ग्रुप में कर दिया गया, ऐसा कम्युनिटी बेस्ड कर दिया गया इसको। तो ऐसा नहीं है सिर्फ पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को भी देना है, उसके नियर बाय कम्युनिटी को भी अपन को देना है, सो दैट we can achieve the our environmental and cleaning and other infection. We can reduce hospital infection. So workload, staffing, and bad occupancy impact on infection control. That is a true. अगर स्टाफ का वर्कलोड और बैड ऑक्यूपेंसी ज्यादा होता है तो इम्पैक्ट पड़ता है इन्फेक्शन कंट्रोल पे। देखा होगा आपने आईसीयू के अंदर चार पेशेंट में एक नर्स दे देते हैं कभी, जब आपका वर्कलोड होता है तो केयर ऑफ जो पेशेंट केयर है वो भी क्या होगा, वो डिटोरिएट ही होगा, केयर कम होगा। जो मॉर्निंग में अपन हैंड ओरल हाइजीन करवाते हैं, हम बैक केयर करते हैं, प्रिवेंट फॉर द बैड सोर, पोजीशन चेंज करते हैं, अगर एक नर्स के पास 6 पेशेंट होंगे तो वो क्या कर पाएगी 6 घंटे की ड्यूटी में, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो वी ऑल्सो फोकस वर्कलोड स्टाफिंग, कैसे अपन को स्टाफ को डिवीजन करना है अकॉर्डिंग टू बेड ऑक्यूपेंसी। वी कैन कंडक्ट ऑल्सो ऑडिट्स कि किस नर्स को कितना पेशेंट रेशो, एनपीआर रेशो होता है ना, नर्स पेशेंट रेशो, तो वी कैन डू ऑल्सो। Then sterilization and disinfection best practice for nurses. Already we have discussed critical disinfection and sterilization methods and monitoring and documentation. स्टेलाइजेशन में हम क्या क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, ईटीओ करते हैं, तो ये these are the methods for the sterilization. Critical disinfection sterilization मतलब like these are the we are using biological indicators, chemical indicators, then उसका monitoring भी होता है, then documentation भी होता है। real work impact, how effective infection control save lives, 40% reduce hospital stay हम कर सकते हैं इसमें, 30% एवरेज कोस्ट सेविंग हम कर सकते हैं, 95% पेशेंट सेटिस्फेक्शन हम लेवल लेकर आ सकते हैं। बियॉन्ड नंबर द ह्यूमन इम्पैक्ट, नर्स अ चेंज एजेंट, नर्स कैन डू and can change the environment. Then identify gap in your units infection control practice. So how can we identify gaps? हमने ऑडिट कर लिया, हमने कमेटी बना ली, हमने सब कुछ डिस्कशन कर लिया, बट नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी हाउ कैन वी आइडेंटिफाई गैप्स on units. If I am working the ICU, so how can I identify my gaps in my unit related to the infection control practice? So first we need to do group discussions. What are the top 3 infection control challenges in your unit? Then which practice have the lowest compliance rates and why? Third, what barrier prevent optimal infection control in your settings? Fourth, what resources or support do you need? These are the group discussion questions we need to discuss in on units. Then problem solving activities, small groups, select one, identify gap, develop root cause कर सकते हैं, then propose intervention plan, measurable outcomes and timeline for implementations. That is a we can do identify gaps in our units. Okay. So
फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनएबीएच ऑडिट, आपने देखा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली किए जाते हैं. हाउ डू यू हैंडल नॉन कंप्लायंस फाइंडिंग, what are the common documentation pitfalls, how should I communicate with auditors? So these are the frequently question asked by the auditors, as well as these are the like a summary mastering infection control of the quality and compliance. So call to action: empower yourself, protect your patient and patient, commit to excellence, lead by examples, mentor and teach, and stay current. Thank you. Any question? Thank you so much. So thank you, Dr. Jatin. रियली थैंक यू, आपने बहुत ही सिंपल करके बता दिया सारे ऑडिट्स में. आई फील हम भी जब फेस करते हैं, इवन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट सो मेनी टाइम्स, तब भी हमको ऑडिट में हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है, या हमेशा कुछ ना कुछ डर ही लग रहा होता है कि इस बार ये क्वेश्चन मिस ना हो जाए. सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही क्रिस्प बताया. एंड आई होप सारी नर्सेज जिन्होंने ज्वाइन करा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया. एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम नानू, दैट डू वी नीड टू बाय NABH गाइडलाइंस बुक? Yeah. If your hospital is going for NABH, full NABH accreditation, so you have to have an NABH accreditation book so that you can implement as per the NABH standard. Okay, okay. And any other questions? Yes, Yes, please sir, go ahead. sir, with this course, I also came to know many things about the ICL, पर हम जानना चाहता है कि एक प्रेशर ICL हमको उनका एबंडम ऑफ वर्कलोड रहता है, तो हमको ऐसे प्रेशर कौन सा वर्कलोड से हमको बिगिनिंग करना चाहिए? जैसे कि बहुत सारा डिपार्टमेंट रहता है, तो हमको कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से शुरू करना चाहिए ना टीचिंग में? हमको समझ में नहीं आ रहा है इस चीज में. Yeah. So being a ICN, first you need to choose the plan. PDCA जो मैंने अभी Yeah. बात किया. First you need to discuss with कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है. So first you need put the small points कि हम इस तरह से प्लान करेंगे, then फिर हम इस तरह से एक्ट करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, then आउटकम्स आएंगे. First you need to identify gaps for small departments, like we are talking about the ICU. If ICU staff were not follow the hand hygiene compliance, so first you should give training what is important for the hand hygiene compliance, what is important for the hand washing, so how can we prevent the HA. First you need to give the some trainings to awareness for ICU staff, paramedicals, ICU technicians, so that after that you can do the analysis and you can report to your ICU infection control officer. Even you can report in HIC committee. Okay, thank you, sir. There is another question from Suman Preet. Sir, could you please explain ICRA, ICRA, PCRA in brief? Okay. ICRA, there is a major big topics. So I think we need to discuss in second webinar. ICRA and PICRA, that is like if your hospital is going for the construction, so it should be filled by ICO and by HIC team, ICRA and PICRA. So I think Dr. Mag, we need to discuss for Yeah. broad in next webinar. So, Sumanpreet, your question we will also take it up in the doubt session जो हम next week Saturday को कर रहे हैं, तो आप उसमें भी Okay, कर ma'am. सकते हैं. And because you might also be knowing कि ये बहुत ही पूरा मतलब पूरा ही बड़ा Yes, टॉपिक है, ma'am. तो हम Yes, डिटेल में ma'am. सैटरडे को अपने डाउट सेशन में इसको ले लेंगे, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम करंट Yes, टॉपिक. ma'am. तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा सुमनप्रीत. वी विल Sure, ma'am. शेयर द Sure. लिंक विद यू एंड इन द ग्रुप्स आल्सो. Thank you so much, ma'am. So Sure, any ma'am. other queries? Sarika has asked, what is the course module for infection and quality? So Sarika has asked, what is the course module for infection control and quality? So Sarika, I will answer. Dr. Jatin, I will answer this for Sarika. So basically, Global A1 Institute में हम लोग
नर्सिंग के बहुत सारे कोर्सेज हम लोग जो दे रहे हैं, लाइक इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी नर्स एंड आपका जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें ईच कोर्स विल हैव अराउंड 12 to 13 मॉड्यूल्स जो आपको हर वीक 12 वीक्स के अंदर फिनिश करने होंगे। एंड ऑलमोस्ट सारी डिटेलिंग्स हम ले रहे हैं अलॉन्ग विद वीकली, अलॉन्ग विद मंथली वेबिनार एंड मंथली डाउट क्लासेस। तो ये सारे मॉड्यूल्स उनमें कवर हो जाएंगे एंड आपको हेल्प करेंगे। सो एनी अदर क्वेरी? If not, then I think I will share the screen now. We have special offers going on in Global A1 Institute. Mr. Kamal will just brief you. Thank you so much, Dr. Jatin, for sparing your time. And Thank you so over to much. Mr. Kamal now. Thank you. Thank you, sir. Hi, good evening. So thank you so much, Dr. Jatin. It was a very wonderful session. I hope nurses को बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हुआ है इन सब चीज़ों से, और थैंक्स अ लॉट। सो अगेन, जैसे अभी सारिका ने पूछा कि लाइक हमारे पास में आईसीएन को लेके क्या मॉड्यूल्स हैं। सो माय डियर ऑल नर्सिस, मैं आपको अभी ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट का एक लिंक जो है, हमारा कोर्स पेज का जो लिंक है, मैं आपको शेयर करूंगा, जहाँ पे हमारा पूरा स्टोर है। और जहाँ पे स्टोर पे अभी जो स्पेशल, बिकॉज देखिए आप नर्सिस बहुत सारी ऑलरेडी अराउंड द वर्ल्ड काम कर रही है, अपने इंडिया में कर रही है, और आप वो लोग हैं जिन्होंने इस सेशन में आए और 1 से 1.5 घंटे तक आपने टाइम स्पेंड किया। इट मीन्स यू गाइज आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देम। बिकॉज हो सकता है हमारे लिंक्स और भी हजारों नर्सेज देखती हैं, सम हाउ कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट आई नो कि जो लोग यहाँ तक आए हैं, जिन्होंने ये सेशन को लिया है, इट मीन्स आप कुछ अलग हटके अच्छा करना चाहते हैं अपनी ही फील्ड में, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। तो वो जो चीज़ है आपके अंदर, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, आपके लिए सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे, जो भी आप कोर्सेज सिलेक्ट करेंगे, और आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज आपने जो सेशन को ज्वाइन किया है इस वजह से। सो जनरली हमारा कोर्स प्राइस होता है 10,000 रुपीज पर कोर्स, बट आपको 10,000 में 2 कोर्सेज मिलेंगे। आप अपनी मर्जी से अवेल कर सकते हो कोई भी 2 कोर्सेज। मैं आपको स्टोर का लिंक अभी चैट में डाल दूंगा। एंड गुड थिंग कि आप उसको ईएमआई में भी पे कर सकते हो। सो ये आपके नर्सिस को ध्यान में रखते हुए, सैलरी कंस्ट्रेंट को देखते हुए, वो लाइक इस तरीके का ऐसा कुछ बनाया है हमने कि किसी को एक अफोर्डेबिलिटी को भी रखा है और क्वालिटी को भी रखा है, ताकि नर्सेज अपने स्किल पे अच्छा काम करें, उसका अच्छा बेनिफिट लें, आप अपने करियर में आगे बढ़ें, शिफ्टिंग ड्यूटीज से हट जाएं, तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। सबसे बेस्ट पार्ट जो कोई नहीं दे रहा है इंडिया के अंदर, तो एटलीस्ट ये जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं वो सारे के सारे डॉक्टर्स की टीम के द्वारा रिकॉर्ड हुए हैं। सो अगर एक डॉक्टर अगर खुद पढ़ा रहे होते हैं और एक कोई फैकल्टी किसी चीज़ की पढ़ा रही है, तो उसमें आई थिंक आप नर्सेज उस चीज़ को एग्री कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस होगा। जो अगर कोई एक सर्जन खुद आपको नॉलेज देगा एक किसी चीज़ की, तो वो बहुत ही जबरदस्त। लेक्चर सारे रिकॉर्डेड है, डाउट सेशंस हमारे होते रहते हैं, उसका आपको पूरी कम्युनिटी जो है उसी के अंदर हमारा एलएमएस पोर्टल है, बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है। आप अपना एनी टाइम, जब आपको टाइम मिलता है, अपनी स्टडी को कंप्लीट करो। 3 मंथ्स होते ही आपको आपका सर्टिफिकेट हैंड ओवर हो जाएगा। और आपके जो बीच में हमारे जो वेबिनार्स हम लोग करते रहते हैं, इतने वंडरफुल, जो जैसे आज आपने देखा डॉक्टर जतिन है, और हमारे पीछे दूसरे डॉक्टरों ने भी वेबिनार्स किए थे प्रीवियसली, तो ये सब चीज़ें हमारी एडिशनल चलती रहती है। तो इसका भी आपको एक्सेस जो है आपको हमेशा मिलता रहेगा, कि आप हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स किया है 3 महीने में सर्टिफिकेट ले लिया तो लेट इट गो, कि अब हमें कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी विद ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट। आपका ग्रुप रहता है कम्युनिटी में, आपको किसी भी लेवल की आपको काउंसलिंग चाहिए होती है, आप एनी टाइम अपने डाउट आफ्टर कोर्सेज ऑल्सो, इट्स ए लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्डिंग। सो अमाउंट इज नॉट ए बिग डील। सो आवर मोटिव इज टू प्रोवाइड यू ए गुड क्वालिटी कंटेंट, जो आपकी लाइफ में हेल्प करेगा, आपकी लाइफ को इंप्रूव करेगा, आपको लॉन्ग टर्म आगे लेके जाएगा। सो मैं भी आपको एक लिंक शेयर कर देता हूं। सो ये लेकिन ऑफर जो है ये ओनली आज रात के लाइक 12 बजे तक जो है, ये कूपन जो ओनली वैलिड रहेगा हमारे पोर्टल पे। बिकॉज देखिए सारे और भी एग्जिस्टिंग नर्सेज हैं, सारा हमारा पब्लिक डोमेन पे है वो, तो हम लोग सबको फिर वो एडवांटेज देने का फिर मतलब नहीं होता ना। आप लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम निकाला है, आप लोग एक्स्ट्रा कुछ करने आए, तो आपको एक डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट होना चाहिए, देन आपको लगेगा कि कोई सेंस बनेगा। सो मैं आपको यहाँ पर
एक कांटेक्ट नंबर भी डाल देता हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी ऐसा लगता है तो जो आज अभी परचेज कर रहे हैं तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक कांटेक्ट नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये जो है आपका एक क्वेश्चन है कि ईएमआई हाउ मच नीड टू बी पे एंड हाउ मेनी मंथ्स। सो इसकी टोटल मान के चलो, आपका अगर दो कोर्स 10,000 में लेते हो तो इसका 2,000 यानी 5,000 की दो ईएमआई बन जाएगी आपकी। सो एक अभी देनी होगी, एक आपको नेक्स्ट मंथ देनी होगी। जैसे ही आपका आज आज 11 ऑफ जनवरी है तो नेक्स्ट जो 11 ऑफ फरवरी होगा तो आपके कोर्स में ऑटोमेटिक ही दिखा देगा आपको कि अब आपकी ईएमआई का डेट आ गया, तो आप वो दे सकते हो। और अभी बाय एनी चांस अगर ऐसा कुछ लगता है, अगर 3 कोर्स लेने हैं 10,000, नहीं नहीं वो पॉसिबल नहीं है। जो ये किसी ने डाला है कि अगर 3 कोर्स लेने 10,000 में, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि ये जो कोर्सेज की अगर आप वैल्यू देखेंगे, आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस कंटेंट को क्रिएट करने में कितनी मेहनत लगी हुई है। सीपीडी एक्रेडिटेड जो इंडिया के अंदर सिर्फ या तो मेदांता दे रहा है या ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट दे रहा है, सबसे बड़ी बात। तो ये 70 कंट्रीज में आपका सर्टिफिकेट जो होगा वो वैलिड होगा। आपको लेक्चर्स की पूरी पीपीटी मिलेगी, आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, उसके अंदर आपके सेल्फ असेसमेंट, हर लेक्चर वाइज असेसमेंट है, ताकि आपको पता रहे कि आपने कितना स्टडी किया है कि नहीं किया। वो क्वेश्चन एक मॉड्यूल कंप्लीट किया उसके बाद उसकी असेसमेंट होगी कि आपकी नॉलेज उससे बढ़ेगी नहीं, आप खुद रियलाइज करोगे। तो आवर नॉट ए मोटिव कि हमारा पैसे लेके सर्टिफिकेट बांटना, इट्स नॉट अवर मोटिव। ऑलरेडी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स कॉल करते हैं हमारे काउंसलर्स के बाद कि आप बस सर्टिफिकेट दे दो, पैसे ले लो, आप ऐसे दे दो। तो वी आर नॉट इन टू दैट कि हमारा मनी पार्ट इज नॉट ए लाइक कि हमें पैसा कमाना, इट्स नॉट। तो आपका बेनिफिट मिलना चाहिए उसको। तो ये क्वालिटी कंटेंट 5,000 जो हमने अभी जो डिस्काउंट में 10,000 में 2 कोर्स दे रहे हैं, इट्स रियली रियली वंडरफुल ऑफर। सो आपको मैं अभी इसमें दे देता हूँ, आपको लिंक आपको मैं चैट में डाल देता हूँ, इसको आप लिंक को सेव कर लेना, ताकि आपको इससे आप सब कुछ ऑटोमेशन पे है। आप अपना कोर्स सिलेक्ट करना, उस पर पेमेंट डिटेल डालना, आप ईएमआई ऑप्शन सिलेक्ट करना, ईएमआई करना। और हाँ, मैं नंबर भी डाल देता हूँ इसमें, अगर इसी किसी को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो। मैंने अब नंबर इसमें शेयर कर दिया है, ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं है, आप कॉल कर सकते हो किसी को, कोई और ज़्यादा डिटेल में किसी की क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप पहले शांति से सारी चीज़ें आप अपनी क्वेश्चंस क्लियर करिए, उसके बाद आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। लिंक अवेलेबल रहेगा ये 12 बजे तक वैलिड। आप ये नंबर सेव कर लें। और दूसरा मैं आपको स्टोर का लिंक डाल देता हूँ। इस लिंक पे आपको पूरा का पूरा सारे हमारे कोर्सेज हैं, यानी जो हमने कॉम्बो बना रखे हैं, 2 कोर्सेज के कॉम्बो बना रखे हैं, सिंगल कोर्स है, 3 कोर्सेज का कॉम्बो पैक बना रखा है। तो 3 कोर्सेज का हमारा जनरल प्राइस क्या होता है? वैसे तो हमारा एक कोर्स 7,000 का होता है, यानी 2 कोर्स हमारा 14,000 का स्टैंडर्ड चलता है। 14,000 में 2 कोर्सेज। अभी ये ऑफर में आप लोगों को दिया जा रहा है कि 10,000 में आप ले सकते हो। और कोई किसी की क्वेरी है तो आप प्लीज आप चैट में अपना मैसेज डाल सकते हैं। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर चैट में सबको शेयर कर दिया है। इनमें कोर्सेज में अगर आप स्टोर पे जाओगे, हर कोर्स के अगर आप जब क्लिक करोगे, पूरी डिटेल दी हुई है कि उसके अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेगी। 10,000 में 2 कोर्स मिलेंगे आपको। ओप्पो सीपी एच, एक इनका नेम है, इनका नेम नहीं आ रहा है लिखे हुए। इनका जो क्वेश्चन है कि कितना कोर्स मिलेगा 10,000 में, आप कोई भी 2 कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप ये सारे कोर्सेज जो हैं आप देख रहे हो, 8 कोर्सेज हैं, इन 8 में से कोई भी 2 कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। हेलो यस यस। सर, अगर हम आईसीएल कोर्स लेने के बाद इंस्टेड ऑफ टेकिंग अदर कोर्सेज हम फिर आईसीएल कोर्स और करना चाहेगा तो हमको सिलेबस
और आगे मिलेगा ना वही जो ऑलरेडी आपके पास हाँ एकदम, होता है। मैम इसका आंसर करेगी आपको। Yeah. So, hello Nanu, thank you. I'm Dr. Mehak. So, agar we have advanced ICN also. So, we have हम्म ICN which is 3 months online course जो आपको LMS पोर्टल के थ्रू मिलता है, जिसमें डॉक्टर्स ने लेक्चर्स रिकॉर्ड करे हुए हैं. वी हैव 12 मॉड्यूल्स. उसके अलावा इफ यू गो फॉर एडवांस ICN कोर्स तो उसके आगे ही आपके 3 मंथ्स एक्सटेंड हो जाते हैं, विच इज़ अ 6 मंथ्स कोर्स टोटल. उसमें वी हैव अ OGT मॉड्यूल होता है, दैट इज योर ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो आप यहाँ आके भी कर सकते हैं या फिर आप किसी हॉस्पिटल में वर्किंग है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं. हम आपको एवरी वीक टास्क देंगे एज अ हम्म ICN डमी टास्क. आप एज अ ICN डमी टास्क हम अपने कंप्लीट करेंगे, हमें वो शीट्स आपकी फिल करके अपलोड करेंगे पोर्टल पे ही. वी विल चेक दैट अप, वी विल डिस्कस एंड वी विल टेक लाइव क्लासेस फॉर 12 मॉड्यूल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. सो 12 मॉड्यूल आपके हम 3 मंथ्स में कवर कराएंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग के, विच इज लाइक योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. सो 6 मंथ्स एडवांस ICN कोर्स के बाद आप फुली ट्रेंड होते हैं टू वर्क एज अ ICN. उसमें जहाँ भी आपको प्रैक्टिकल सपोर्ट भी चाहिए होता है, हमारी कम्युनिटीज भी है. आई होप आप लोग सबने ज्वाइन करी है. तो नर्सिंग को हम इवन आफ्टर, अभी कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से ICN जॉब पे लग गए हैं, पर अभी भी हमें कनेक्ट करते रहते हैं कि मैम फॉर्म कैसे भरना है, हैंड हाइजीन का चेकलिस्ट कैसे भरनी है. तो अभी भी वी कीप हेल्पिंग देम, एंड इवन इन योर इंटरव्यूज आपको आगे जॉब में भी क्वेरीज आती है तो उसमें भी. सो एडवांस ICN के लिए you can share your number privately in the private chat, Nanu, and we will connect with you. Somebody from the team will get in touch with you. हाँ, it will be for better. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so when this will start, please tell and time also. Okay, so गायत्री बिनाराम, ये जो कोर्स है, आप जैसे ही आपका जो पेमेंट का जो इसमें सक्सेस हो जाएगा, आपके पास में खुद आप अपना आईडी पासवर्ड उसमें बना लोगे, स्टेप बाय स्टेप आपको खुद समझ में आ जाएगा और इमिडिएटली आप आज से ही पढ़ना अपना स्टार्ट कर सकते हो. बट वो मॉड्यूल्स जो है आपके, वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. लाइक आपको हर वीक में एक मॉड्यूल अनलॉक होगा, हर वीक में एक मॉड्यूल अनलॉक होगा. तो यानी वो पूरा 3 मंथ्स तक आपको चलेगा. ऐसा नहीं है कि आपको आज देख के उसमें सारा कुछ कंट्रोल लगा कि कोई वीडियो मॉड्यूल है तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज आपको देखना पड़ेगा. सो हमने चीजें ऐसी बनाई है कि आवर फर्स्ट मोटिव इज कि आप उनसे बहुत ही अच्छा बेनिफिट लें, सीखें, उसको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, नोट्स बनाएं. तो इसलिए वो वीक वाइज एक वीक को ऊपर टाइम दिया हुआ है कि आप पूरा एक वीक लगाएं, एक मॉड्यूल को अच्छे से समझें, पढ़ें, PDF उसका पढ़ें, जितना भी डिटेल मॉड्यूल उसमें दिया हुआ है, तो आपको बेस्ट आउटपुट मिले उसका. तो नेक्स्ट है, गुड इवनिंग सर, मुझे क्वालिटी कंट्रोल नर्स के नोट्स चाहिए. हाँ, वो सारे जो होते हैं ना हमारे, देखिए आप एक बार अगर कोर्स स्टोर को देखोगे ना खोल के, कोई भी कोर्स जैसे क्वालिटी कंट्रोल नर्स के चाहिए आपको, तो क्वालिटी कंट्रोल नर्स का सबसे पहले क्या होता है कि जो लेक्चर्स, हमारी जो PPT होती है, जो डॉक्टर्स पढ़ा रहे होते हैं, वो पूरा पहले तो वीडियो होता है उसके अंदर, अराउंड 41 आवर्स का अराउंड पूरा वीडियो होगा जो आपको समझाया जाएगा. फिर उसी लेक्चर को जो पढ़ाते हैं उसकी PDF भी होती है नेक्स्ट उसके उसी के अंदर. उसके बाद उसके बारे में और डिटेल में एक मॉड्यूल होता है, यानी उसी टॉपिक को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए. फिर उसके बाद उसकी असेसमेंट आती है. तो ये हर मॉड्यूल में ऐसा ही है, मॉड्यूल वाइज. ये आपको ना हर मॉड्यूल के बाद नोट्स भी मिलेंगे. जो आपने क्वालिटी कंट्रोल नोट्स के नोट्स के लिए बोला है, आपका नाम मैं जानना चाहूंगी, जूम यूजर लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज. एंड इसके अलावा ना, इफ़ यू वांट हमारी जो मंथली हम क्वेरी सेशंस या डाउट सेशन, ओके बबीता हाय. सो बबीता, हम मंथली डाउट सेशंस भी करते हैं, तो उन मॉड्यूल्स के गो थ्रू करने के बाद भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप अपने काउंसलर से शेयर कर सकते हैं या कम्युनिटी में भी पूछ सकते हैं. तो हम उनको टेकअप करके लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस में उनको क्लियर आउट करते हैं. और एक और पूछा था नागवेनी का क्वेरी था, व्हेन विल दिस कोर्स बी स्टार्टेड. सो नागवेनी, ये सेल्फ पेस्ड कोर्सेज होते हैं बिकॉज नर्सेज की बहुत सारी शिफ्ट ड्यूटीज चलती रहती हैं. तो दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स along with your PPTs, डिटेल्ड मॉड्यूल्स एंड MCQs जो आप अपना टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं. बिसाइड्स दैट आप हमारे लाइव सेशंस भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं वंस यू गेट इन टच विद आवर काउंसलर्स. मेरे लिंक ओपन नहीं होता है कभी कभी. ओके. सो बबीता, आप अपने काउंसलर से शेयर कर दीजिए. वी विल सॉर्ट दिस. कुछ IT इशू अगर बीच में आप फेस करते हैं या कनेक्टिविटी इशू, सो वी विल सॉर्ट दैट आउट फॉर यू इमिडिएटली. लाइव सो कोई और किसी की क्वेरी है तो प्लीज आप शेयर कर दीजिए. बस ये याद रखना मैं जो कहा. हेलो. ओके, आपने
Srijal Kailka, sir, currently I have taken the ICN course from your institute. So can I avail the course we are discussing now, sir? Yes, yes. आप इमीडिएटली जहाँ पे आपने कोर्स अगर लॉगिन कर रखा है ना, लॉगिन जिसका आप डैशबोर्ड में कॉर्नर पे कहीं पर देखोगे एक स्टोर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे स्टोर। तो वहाँ पे आप स्टोर पे जाके कोर्सेज जो भी आपको लेना है आप उस पर क्लिक करके परचेज कर सकते हो। तो उसी में आपके डैशबोर्ड में वो दूसरा कोर्स ऐड हो जाएगा। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? 3 मंथ्स हो गए हैं आपको। ये अगर 3 मंथ्स आपके हो गए हैं तो एक बार आप अपने काउंसलर से चेक करिएगा। पहले हमारे सारी रिपोर्ट्स आपकी असेसमेंट चेक होगी कि वो कंप्लीटली आपने 100% कोर्स कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, या कोई मॉड्यूल बीच में रह तो नहीं गया है। तो वो एक बार चेक कर लेंगे। अगर वो सब कुछ 100% डन रहेगा तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वेरी नेक्स्ट डे मिल जाएगा आपको। एक बार काउंसलर से जरूर डिस्कस कर लेना। ICU and EMT कोर्स दिखाई नहीं देता। ICU और EMT कोर्स आप करना चाह रहे हैं कबीर? ICU क्रिटिकल केयर नर्स के नाम से आपको मिल जाएगा। ICU नर्स का कोर्स है, क्रिटिकल केयर नर्स का। और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए तो आपको डिटेल वो उसी पेमेंट लिंक की शेयर हो जाएगी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ICU और दोनों के लिंक मिल जाएंगे। एक और था लाइव सेशन के लिए आपने क्वेरी करी है गायत्री। सो लाइव सेशन हमारे अभी जो कोर्सेज हैं वो रिकॉर्डेड है, और अगर आप ICN एडवांस कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको लाइव सेशंस मिलते हैं। कोई और क्वेरी है तो प्लीज आप डाल दीजिएगा, फटाफट डाल देना। और अगर कोई बाय एनी चांस किसी का अगर ऐसा, एक चीज और बताता हूँ, आपके जो भी कलीग्स होते हैं, कुछ हम लोग ना एक रेफरल बोनस भी देते हैं। आपकी अगर कोई टीम मेंबर में कोई होता है, आप उसको भी सजेस्ट करते हो ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट से ऐसा कोई कोर्स करना है, तो आपको उसका कोर्स का 10% आपको रेफरल अमाउंट भी देता है ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट। तो इट्स आवर रिगार्ड कि आपने अपने दोस्त को किसी को रेफर किया, आपने उसकी भी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी, आपने सजेशन दिया उसको कि चूज ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट, बिकॉज आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके होते हो कि लाइक द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। आप अपने अपने कोई भी काउंसलर से बात कर सकते हो कि मेरा एक कोई फ्रेंड है, मेरा कोई कलीग है, तो वो भी करना चाहता है, तो आप अपना रेफरल जो है वो कूपन आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपको 10% भी आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। सर एडवांस में ICN की फीस सेम है 25 की? नहीं, एडवांस ICN की फीस सेम नहीं है, उसका 25,000 फीस होता है एडवांस ICN का। और कोई क्वेरी है तो बताइए प्लीज। मैं ऑलरेडी एक ICN ऑप्शन में और एडमिट मैं हो आपको चुका दे हूँ। देता हूँ कि कौन सा समहाउ लिंक पे जैसे कि क्या सकते हैं कूपन जो है बता आज सकते हैं? वैलिड तो रहेगा 12 o'clock। एक बार प्लीज आप गायत्री माइक ऑफ कर दीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को अगर समहाउ कुछ लगता है बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन की अभी आज ऑफर भी लेना है लेकिन पेमेंट का कुछ भी समहाउ इशू हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट 1 वीक का टाइम मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ बुकिंग अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज। आपको समझ में आया ये बात कि आप जैसे जिनको अभी लेना है वो तो ले लेंगे, ठीक है, विच इज ओके फाइन, बिकॉज लेना ही है, ये तो ऑफर तो ठीक है, मेरा आज 12 बजे तक हमारा ऑफर है। लेकिन सम हाउ अगर कुछ को किसी को अगर जेन्युइनली प्रॉब्लम है, बिकॉज हम लोग वैसे रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज देखो आपको करियर में तो आगे बढ़ना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, पढ़ाई तो करनी है, अच्छी ICN तो बनना ही है, तो उतना तो नहीं सोच सकते। बट सम हाउ कुछ नर्सिस का हम लोग फील करते हैं कि उसको जेन्युइनली ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि चलो उसको 2 दिन में पेमेंट आने वाली है, 3 दिन में आने वाली है, तो सिर्फ मैं उसको उनके लिए ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको जेन्युइनली किसी को ऐसा फील हो रहा है तो आप 1,000 रुपीज दे के हमें पेमेंट करके, और आप 1 वीक के अंदर अंदर अगले आने वाले दिन में आप सेम प्राइस पे 10,000 में 2 कोर्स ले सकते हैं। तो क्लियर है आपको सबको? कोई और किसी को डाउट है तो प्लीज आप चैट में डाल दीजिएगा।
ओके, सो आई थिंक सारी क्वेरीज सब सोल्व हो गई हैं। इसके अलावा भी अगर किसी की कोई कस्टमाइज क्वेरी रहती हैं, सो आप कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया है, आप कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस।